فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریتو بندھو کی رقم کی تقسیم سے متعلق اہم فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریتو بندھو کی مدد کی تقسیم کی اجازت سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے اس مہینے کی 28 تاریخ سے ریتو بندھو کی امداد تقسیم کرنے کی تلنگانہ حکومت کو اجازت دی تھی۔ تازہ طور پر انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر اجازت واپس لے لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 28 کی شام انتخابی مہم اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے پولنگ کے اختتام تک امدادی رقم جمع نہ کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ فیصلے سے 70 لاکھ کسانوں کی امداد رک گئی ہے۔ اس ملک میں آزادی کے بعد سے ہی حکومت دستور سے صرف نظر کرتے ہوئے ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں سے سونتیلا سلوک روا رکھا۔ اکثر کو خوش کرنے ہر شعبہ حیات میں مسلمانوں سے ماندانہ پالیسی کو ہر سیاسی پارٹی نے اپنا کر اپنے حصول اقتدار کا ذریعہ بنایا اور بتدریج اس ملک کے مسلمانوں کو حاصل ان کے جمہوری و دستوری حقوق سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ جب سے اکثریت کے ووٹ بینک کی خاطر ملک کی تمام قومی و علاقائی سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں سے امتیاز برتنے کے اس موت سبانہ آسان نسخے کو اپنا لیا تو ادھر ملک کے سیکولرزم کے تانے بانے بکھرنے لگے ہیں اور ادھر تمام عالم میں ہمارے ملک کی جمہوریت داغدار ہوتی جا رہی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی مسلمان ایسے ہی حالات سے دوچار رہے۔ ملک میں مسلمانوں کے لیے 9 سال سے مسلمانوں کے بہت سے حل طلب مسائل ان مسائد حالات و حقوق کی طرف اپنی وسیع النظری کی مفید و فائدہ مند اسکیمات کا آغاز کیا، بلکہ ان اقدامات سے مسلمانوں کو مقبولیت کے ساتھ ان سے داد تحسین بھی حاصل کی ہے۔ مسلمانوں کے لیے TRS کی کئی اختراعی اسکیمات جیسے غریبوں کی سطح غربت سے اٹھانے، ان کی مالی امداد، حیدرآباد و اضلاع میں نادار طلبہ و طالبات کے لیے 200 سے زائد اقامتی اسکولز کا قیام، مستحق طلبہ کے لیے مفت تعلیم، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے لاکھوں روپیوں کے اخراجات، مستحق لڑکیوں کے لیے شادی مبارک اسکیم اور ائمہ و مؤذنین کے لیے ماہانہ اعزازیہ وغیرہ یقیناً قابل تعریف و تحسین ہے۔ نیز ملک بھر میں آپسی و فرقہ واری نفرت کے ماحول میں تلنگانہ حکومت کا اس ریاست میں گنگا جمنی تہذیب و امن و امان کو برقرار رکھنا کارنامے سے کم نہیں ہے۔ اس موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ کو ہم اپنے دیرینہ و اہم مطالبات کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں TRS حکومت بنتے ہی مسلمان کے لیے 12% تحفظات کا مطالبہ جو عرصہ دراز سے BRS حکومت کے اعلان کا منتظر ہے اور مسلم وقف کی جائیدادوں کی صیانت و گزاشت جیسے حساس مسائل سے مثبت حل کی طرف اپنی توجہ کریں تاکہ مسلمانوں کی بے چینی دور ہو سکے۔ TRS حکومت کی ان 9 سالہ قابل تعریف خدمات کی بنا ہم تمام ریاست کے تمام ووٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ 30 نومبر کو ہر ووٹر اپنا قیمتی ووٹ جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں وہاں مجلس کے حق میں ورنہ BRS کے حق میں استعمال کریں۔ ہر ووٹر سے ہماری یہ بھی خصوصی اپیل ہے کہ اپنے اور اپنے افراد خاندان کے تمام ووٹوں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اپیل جاری کرنے والے علماء اکرام و مشائخین عظام میں مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری، امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ و امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا مولانا سید حسن ابراہیم حسینی سجاد پاشا قادری، معتمد صدر مجلس علماء دکن مولانا سید محمود بادشاہ قادری، زرین کلام مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا قادری، مولانا سید اولیاء حسینی مرتضی پاشا قادری، مولانا سید آل مصطفیٰ علی پاشا قادری الموسوی، مولانا سید شیخ احمد کامل پاشا قادری الشتاری، مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی قادری، مولانا سید وسیع اللہ حسینی قادری، مولانا سید قطب الدین حسینی زید صابری، مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی، مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری، معیز اراکین صدر مجلس علماء دکن، مولانا سید فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید ابراہیم قادری فاروق بادشاہ زرین کلام، مولانا میر فراست علی شتاری، مولانا سید لیاقت حسین رضوی المدنی اور مولانا ندیم اللہ حسینی معزز اراکین امارت شریعہ شامل ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम IT पार्क कायम करने का वादा किया है। इस तरह के वादे गैर दस्तूरी हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल करने पर दिसंबर से 6 माह तक मुकम्मल इम्तना होगा। RTC ओहदेदारों की दरख्वास्त पर गौर करते हुए जिन्होंने जल्द खत्म होने वाले इस इम्तना में तोसी करने की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने हाल में इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत तेलंगाना ने जारी किए गए हुक्म में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल करने पर 1 दिसंबर से 6 माह तक इम्तना आयद किया है। अवामी मुफाद के पेश नज़र और RTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। RTC के ओहदेदारों ने ये बात कही है। मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों के लैपटॉप और कीमती अशिया की चोरी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 26 साला नदीम के तौर पर की गई है, जो मूसा रामबाग का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने इसके पास से 6 लैपटॉप और 1 सेलफोन जब्त कर लिया है। नदीम ने शहर के इलाकों अफजलगंज, चंद्रायन गुट्टा, चादरघाट, खैरताबाद, आसिफ नगर और हबीब नगर की मस्जिदों में चोरियां की हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदराबाद की मसाजिद में नमाज के औकात में जाता और जब मुसल्ली अपने लैपटॉप के बैग और कीमती अशिया वगैरह रख कर नमाज पढ़ रहे होते थे, वो उनके लैपटॉप्स का सरखा करके फरार हो जाया करता था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बीआरएस की अक़लियती क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने रियासत के मुसलमानों को कांग्रेस से चौकस रहने का मशवरा दिया है। जेडचिल्ला में अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में RSS के एजेंट शामिल हो गए हैं और वो मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी बताकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान हरगिज कांग्रेस के झांसे में न आए और अपना एक एक वोट बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को देते हुए तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखने और रियासत के मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत को ताउन करे। जेडचिल्ला के RK गार्डन फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी की जानिब से हल्का असम्बली जेडचिल्ला के मुस्लिम अक़लियतों का एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मेहमानान खुसूसी के तौर पर मोहम्मद मसीउल्लाह खान वक्फ बोर्ड चेयरमैन और शेख अब्दुल्ला सोहेल माइनॉरिटी सेल बीआरएस पार्टी हैदराबाद, अब्दुल हादी एडवोकेट, जाबिर बिन सईद सैयद ज़िले महबूब नगर, MIM कोऑर्डिनेटर जाकिर एडवोकेट ने खिताब किया। बादशाह जेडचिल्ला बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत में ही जेडचिल्ला मुस्लिम अक़लियतों के अक्सर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, लिहाजा आप लोग इस मर्तबा कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की है। इस मौके पर सत्तार आशिक जिले DCMS डायरेक्टर महबूब नगर, M रमेश रेड्डी साबिक ज़राई मार्केट चेयरमैन बादेपल्ली, मोहम्मद अली दानिश डिप्टी चेयरमैन ज़राई मार्केट बादेपल्ली, MA मलिक शाकिर एडवोकेट, मोहम्मद हफीजुर रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल मुखीद, अब्दुल हसीब, अजहरुद्दीन, मोइस चिश्ती, अयान, जाबिर, लतीफ, सैयद मसीउद्दीन, निज़ाम, महमूद, जहांगीर, सादिक, मोहम्मद गौस, मोहम्मद बशीर के अलावा दीगर बीआरएस पार्टी के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली बालकुंडा बीआरएस पार्टी उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी को बालकुंडा हल्के जमात इस्लामी हिंद शाख की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबापुर में मुनक्किदा हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर बीआरएस पार्टी उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिले जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद के नाजिम मंजूर मोयुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सेक्युलर और अक़लियती दोस्त बीआरएस पार्टी कायद विमला प्रशांत रेड्डी हल्के बालकुंडा से जमात इस्लामी पूरी तायद का ऐलान करती हैं। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने जमात इस्लामी हिंद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ZP को ऑप्शन मेंबर मोइस, बाबापुर सरपंच मोहम्मद अतीक, MPTC सरजील, जमात इस्लामी के जिम्मेदारान मौजूद थे। इस प्रोग्राम में बाबापुर भीमगल के जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान और जिम्मेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की कार्रवाई को इमरान जाबरी ने चलाई और उन्होंने जमात इस्लामी का तारुफ और मुकामी मसाइल से वजीर प्रशांत रेड्डी को वाकिफ करवाया। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है।
एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की तहरीक पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम के नाम खिताब मन की बात के नशरियाती सिलसिले की 107वीं कड़ी की एक अवामी नुमाइश का जामे हमदर्द के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। आज की इस नुमाइशी तकरीब का एहतमाम जामे हमदर्द के चांसलर हमाद अहमद की सरपरस्ती में किया गया। नशर होने वाले मन की बात के इस नुमाइशी प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम के काबिल जिक्र शुरका में हमदर्द यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर अबशार आलम, रजिस्ट्रार और मुख्तलिफ शोबों के असातिज़ा व प्रोफेसरान, भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी और दूसरे अफसरान व कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में जामिया हमदर्द के तलबा व तालिबात ने भी शरीक होकर वज़ीर आज़म के मन की बात की तवज्जो के साथ सुनी है। गुजरात में एक बार फिर कुदरत का कोहराम सामने आया है। गुजरात में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद हलाक हो गए। दाहोद में आसमानी बिजली गिरने से 3 और भरूच में 2 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा अहमदाबाद, साबरकांठा, खेड़रा, पंचमहल, पोदाड़, महसाना, सुरेंद्रनगर और अमरेली में आसमानी बिजली गिरने से एक की मौत की खबर सामने आई है। अमरेली जिले में एक 16 साल लड़का करंट लगने से हलाक हो गया। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से जानवरों के हलाक होने की भी इत्तलात है। अब तक कुल 39 जानवर मर चुके हैं। खेड़ा में सबसे ज्यादा 15 जानवर मरे हैं। बारिश की बात करें तो रियासत के 229 तालुके में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बारिश हुई। 65 तालुकों में 1 इंच से 4.4 इंच तक बारिश हुई। सुरेंद्रनगर तालुका में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश हुई। सूरत शहर में 3.5 इंच, भाबर और राधनपुर में 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरा करने वाली 2 खवातीन को बैनर पर अरबी में एक निशान होने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसका पुलिस एहलकार फौरी तौर पर तर्जुमा नहीं कर सकते थे। अरब न्यूज ने स्काई न्यूज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि शनिचर को होने वाले मुजाहरे में खवातीन से इस निशान का तर्जुमा करने को कहा गया, जो उन्होंने किया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब तंजीम जाए वक़ुआ पर किसी आजाद मुतरजिम के बगैर तर्जुमे की तस्दीक ना कर सकी। एक वीडियो में पुलिस ने एक खातून से अपने बैनर का तर्जुमा करने को कहा, जिस पर उसने जवाब दिया कि इस पर लिखा है, कौन जन्नत में जाना चाहेगा। पुलिस एक आज़ाद मुतरजम के जरिए इसके तर्जुमे की तस्दीक नहीं कर सकी, इसलिए खवातीन को अमन आमा में नुक्स पैदा करने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया और पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये वाकया मैफेयर में साउथ स्ट्रीट पर मिस्री सिफारत खाने में हिजबुल तहरीर के एक एहतजाजी मुजाहरे में पेश आया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तिब्बी सामान, खुराक और पानी से लदे 61 ट्रकों ने शुमाली गजा में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के वक्फे से इमदाद महसूर साहिली इलाके में दाखिल हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने एक बयान में कहा है कि इसराइल के शहर तंजानिया से मजीद 200 ट्रक गजा की पट्टी के लिए रवाना किए गए हैं, जिनमें से 187 मुकामी वक्त के मुताबिक शाम को सरहद से गुजर चुके हैं। बयान में बताया गया है कि 11 एम्बुलेंस, 3 कोचेस और 1 फ्लैट बेड अलशिफा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालिया दिनों में शदीद लड़ाई देखने में आई थी, ताकि इनखला में मदद की जा सके। उसने फलस्तीनी और मिस्री हिलाल अहमर ग्रुपों का शुक्रिया अदा करते हुए मजीद कहा, जितना तवील वक्फा जारी रहेगा उतनी ही ज्यादा इमदाद इंसानी हमदर्दी के इदारे गजा और इसके पार भेज सकेंगे। एक दिन पहले जब इसराइल और हमास के दरमियान गरगमालियों और कैदियों के तबादले की सहूलत के लिए आरजी जंगबंदी शुरू हुई थी, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजमूई तौर पर 137 ट्रकों ने गजा में इमदाद पहुंचाई थी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।